السلام علیکم بچوں، آج میں آپ کو کلاس 10 کا جان پہچان کورس بھی پڑھانے جا رہی ہوں، جس کا پہلا سبق ہے اسماعیل میرٹھی کا۔ اسماعیل میرٹھی 1844 میں پیدا ہوئے اور 1917 میں ان کی وفات ہوئی۔ محمد اسماعیل میرٹھی کی پیدائش میرٹھ میں ہوئی۔ انہیں بچپن سے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا۔ اپنے شوق اور محنت سے انہوں نے بڑی ترقی کی۔ کم عمری میں ملازم ہو گئے، علم و ادب کی دنیا میں نام پیدا کیا۔ اردو اور فارسی کے استاد کی حیثیت سے انہوں نے بچوں کی نفسیات، ذوق، شوق، دلچسپی، پسند اور ناپسند کا جائزہ لیا۔ انہی تجربات کی مدد سے انہوں نے بچوں کے لیے نظمیں لکھیں اور اردو کی درسی کتابیں تیار کیں۔ یہ کتابیں ہر زمانے میں مقبول ہوئیں اور آج بھی شوق سے پڑھی جاتی ہیں۔ اسماعیل میرٹھی نے ان کتابوں میں آسان اور سلیس زبان استعمال کی ہے، بچوں کے مزاج اور ان کی ذہنی ضرورتوں کا خاص خیال رکھا ہے۔ ان کتابوں کی اہمیت اور ضرورت آج بھی مسلم ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑے نتائج پیدا کرنا اسماعیل میرٹھی کا خاص انداز ہے۔ بلا شبہ وہ آج بھی بچوں کے سب سے پسندیدہ اور اہم ادیب ہیں۔ تو آپ نے یہ اسماعیل میرٹھی کے بارے میں نے بتایا۔ اب اس میں آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے، اس بات کو ذہن نشین کریں کہ ان کی پیدائش 1844 عیسوی میں ہوئی ہے اور 1917 عیسوی میں وفات ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ یاد رکھیں کہ محمد اسماعیل میرٹھی کی پیدائش میرٹھ میں ہوئی، اسے انڈر لائن کر لیں۔ انہیں بچپن سے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، ٹھیک ہے، اس چیز سے آپ انڈر لائن کر لیں، انہیں یاد رکھیں۔ اس کے بعد اسماعیل میرٹھی کی کتابیں، ان کے لکھنے کا انداز کیسا تھا۔ اسماعیل میرٹھی آسان اور سلیس زبان استعمال کرتے تھے، اسے آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ آئیے اسماعیل میرٹھی کی لکھی ہوئی نظم حمد، اسے ہم پڑھتے ہیں۔ حمد کے معنی جان لیں۔ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں خدا کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کیا آسماں بنایا، مٹی سے بیل بوٹے کیا خوش نما اگائے، پہنا کے سبز خلعت ان کو جواں بنایا، سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی، کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا، یہ پیاری پیاری چڑیا پھرتی ہیں جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواں بنایا، رحمت سے تیری کیا کیا ہے نعمتیں میسر، ان نعمتوں کا تجھ کو ہے قدرداں بنایا، ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاں بنایا۔ تو یہ نظم اسماعیل میرٹھی کی لکھی ہوئی تھی، اسے یاد رکھنا ہے کہ نظم حمد اسماعیل میرٹھی کی لکھی ہوئی ہے۔ آئیے پہلے اس سبق کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی سمجھ لیجیے تاکہ آپ کو نظم کے تشریح سمجھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلا ہے خوشنما۔ خوشنما کے معنی ہے اچھا دکھائی دینے والا یعنی خوبصورت۔ نمبر 2 خلعت۔ خلعت کہتے ہیں قیمتی لباس جو کسی بادشاہ یا امیر کی جانب سے کسی کو اعزاز کے طور پر دیا جائے۔
नंबर 3 है चश्मा। चश्मा कहते हैं सोता यानी ज़मीन का वो जगह जहाँ ज़मीन से फूटकर पानी निकल जाता है। तस्बीहा, तस्बीहा खुदा की पाकी बयान करने वाला। शायर ने इस नज़म यानी हम्द में यहाँ चहचहाते हुए परिंदों को तस्बीहा कहा है। फिर मैसर होना, मैसर होना के मानी होता है हासिल होना। कदरदान, कदरदान माने कदर करने वाला। कारखाना, कारखाना कहते हैं काम करने की जगह, लेकिन इस नज़म में शायर ने कारखाना से मुराद दुनिया लिया है। रायगा, रायगा के मानी बेकार, फजूल। आइए इस नज़म की तशरीह बताते हैं। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीं बनाई क्या आसमां बनाया। मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज़ खिलअत उनको जवां बनाया। सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्मा तूने ऐ मेहरबा बनाया। सबसे पहले ये अगर लिखना है तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि इस इशार के शायर कौन है। तो ये लिखिएगा कि इस इशार के शायर मोहम्मद इस्माइल मेरठी हैं। शायर इस शेर में कहता है कि खुदाए बुजुर्ग व बरतर की उसने सनाखानी यानी हमद करते हुए कहा है कि मैं उस खुदा की तारीफ करता हूँ जिसने ये दुनिया बनाई है और ये खूबसूरत ज़मीन और हसीन आसमान बनाया है। उसने मिट्टी से फूल फल पैदा किए और वो सूरज के ज़रिए हमें पानी और हरारत अता करता है। आइए अब हम नज़म हम्द की तशरीह करते हैं। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मी बनाई क्या आसमां बनाया। मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज़ खिलअत इनको जवां बनाया। सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्मा तूने ऐ मेहरबा बनाया। जब हम किसी शेर की तशरीह करें या नज़म की तशरीह करें तो सबसे पहले हम शायर का नाम लिखते हैं। इस बात को अच्छी तरह ज़हननशी कर लें। तो इसका तशरीह करते हैं। शायर इस्माइल मेरठी कहते हैं कि हमें खुदा की तारीफ़ करनी चाहिए कि जिसने ये दुनिया बनाई, कैसी ज़मीं बनाई और क्या आसमां बनाया है। इस दुनिया, ज़मीन और आसमान को कोई और नहीं बना सकता। मिट्टी से कैसे कैसे खुशनुमा पेड़ पौधे उगाए और उन्हें हरे भरे पत्तों यानी सब्ज़ खिलअत से इस तरह सजाया कि वो जवान नज़र आए। तो ऐ मेहरबान खुदा ने सूरज को ऐसा चश्मा बना दिया जिससे दुनिया वालों को गर्मी भी मिलती है और रोशनी भी। ऐ खुदा तेरी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आगे है, ये प्यारी प्यारी चिड़िया फिरती है जो चहकती, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीहा बनाया। रहमत से तेरी क्या क्या है नेमतें मैसर, इन नेमतों को तुझको है कदरदां बनाया। हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती, ये कारखाना तूने कब रायगा बनाया। इन अशार में शायर इस्माइल मेरठी कहते हैं कि ऐ खुदा तूने कैसे प्यारे प्यारे परिंदे यानी चिड़िया बनाए, जब वो चहकते हैं तो लगता है सभी तेरे गुन गाते हैं यानी तस्बीह करते हैं। ऐ खुदा तूने अपनी रहमत से कैसी कैसी नेमतें हमें अता की हैं, तू ही इन नेमतों की कदर जानता है। ऐ खुदा तूने इस जहां में, इस कायनात में जो कुछ भी बनाया, इससे तेरी कुदरत व कारीगरी जाहिर होती है। शायर ने इस मिसरे में दुनिया को एक कारखाना करार दिया है, यानी ये दुनिया एक कारखाना है, और फिर कहा है कि इस कारखाने में यानी दुनिया में इस कारखाने में कोई चीज़ बेकार या फजूल नहीं है, हर शय कारआमद और मुफीद है। ऐ खुदा तूने अपनी रहमत से
कैसी कैसी नेमतें हमें अता की हैं, तू ही इन नेमतों की कदर जानता है। ऐ खुदा, तूने इस जहां में, इस कायनात में जो कुछ भी बनाया, इससे तेरी कुदरत व कारीगरी जाहिर होती है। शायर ने इस मिसरे में दुनिया को एक कारखाना करार दिया है, यानी ये दुनिया एक कारखाना है, और फिर कहा है कि इस कारखाने में, यानी दुनिया में, इस कारखाने में कोई चीज़ बेकार या फजूल नहीं है, हर शय कारआमद और मुफीद है, और उन्हें हरे भरे पत्तों से इस तरह सजाया कि वो जवां नजर आए। खुदा ने सूरज को ऐसा चश्मा बनाया जिससे दुनिया वालों को गर्मी और रोशनी मिलती रहती है। इसलिए ऐ खुदा, तेरी जितनी तारीफ की जाए कम है। शायर इस्माइल मेरठी कहते हैं कि ऐ खुदा, तूने कैसे प्यारे प्यारे परिंदे बनाए, जब वो चहकते हैं तो ऐसा लगता है सभी तेरे गुण गा रहे हैं। ऐ खुदा, तूने अपनी रहमत से कैसी कैसी नेमतें हमें अता की हैं। तूने इस कायनात में जो कुछ भी बनाया, उससे तेरी कुदरत व कारीगरी जाहिर होती है। शायर ने इस दुनिया को एक ऐसा कारखाना करार दिया है जिसमें कोई चीज़ बेकार या फजूल नहीं है। यहाँ की हर शय हमारे लिए कारआमद और मुफीद है। नज़म हम का मरकज़ी ख्याल जाना। खुदा ताला ने इंसान को बहुत सी नेमतें अता की हैं। ज़मीन, आसमान, फल फूल, पौधे, नदियाँ, परिंदे, बेशुमार चीज़ें पैदा की हैं। हमें इन चीज़ों की कदर करनी चाहिए और इस रहमत और इस करम का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हर चीज़ से उसकी रहमत, अज़मत, हिकमत और कारीगरी का इजहार होता है। हमें इन तमाम मेहरबानियों के लिए उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। यानी नज़म लिखने का शायर का मरकज़ी ख्याल ये था कि अल्लाह ने इंसान को हमें बहुत सी नेमतें अता की हैं, जैसे ज़मीन है, आसमान है, फल फूल, पौधे, नदियाँ, परिंदे, जितनी भी चीज़ दुनिया में है, ये सब चीज़ें अल्लाह ने पैदा की हैं। तो हमें क्या है, हमारा फ़र्ज़ है कि हमें इन सब चीज़ों की कदर करनी चाहिए और अल्लाह ने जो हम पर रहमत की है इस और उसके करम का शुक्रिया हर पल अदा करते रहना चाहिए कि हर चीज़ से अल्लाह की रहमत, अज़मत और कारीगरी का ज़ाहिर होती है। तो हमें हर वक्त अल्लाह की मेहरबानियों के लिए उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। आइए अब नज़म हम के जो सवालात हैं उनके जवाबात बताते हैं। तो इनके सवाल जवाब का हल करें। जो इनसे में सवाल हैं उनके हल करें। पहला सवाल है, शायर ने बेल बूटों को मिट्टी से उगाया हुआ क्यों कहा है? इसके जवाब लिखें। मिट्टी से पेड़ पौधे उगते हैं और उन पर बेल बूटे फूल फल लगते हैं, इसलिए शायर ने खुदा की कुदरत को जाहिर करने के लिए कहा कि मिट्टी से खुदा ने किस कदर खुशनुमा बेल बूटे उगाए हैं। सवाल नंबर 2 है, सूरज को चश्मा क्यों कहा गया है? जवाब इसका लिखें। चश्मा उस जगह को कहते हैं जहां जमीन से फूटकर पानी निकलता है। उसी तरह हर सुबह सूरज तुलू होता है तो उससे रोशनी और हरारत फूटती है। गोया सूरज रोशनी और हरारत का चश्मा है। सवाल नंबर 3, चिड़िया खुदा की तस्बीह कैसे करती हैं? जवाब इसका है, चिड़िया जब चहचहाती हैं तो शायर तसव्वुर करता है कि यह खुदा की हम्द व सना कर रही हैं, उसकी पाकी बयान कर रही हैं। सवाल नंबर 4, आखिरी शेर में कारखाने से क्या मुराद है? आखिरी शेर में कारखाने से मुराद है दुनिया।
اب اگلا سوال یہاں ہے کہ اس نظم یعنی نظم حمد کی روشنی میں بتائیں کہ نیچے دیے گئے مصرے پر 5 جملے لکھنا ہے۔ یعنی اس نظم کی روشنی میں نیچے دیے گئے مصرے پر 5 جملے لکھیے۔ نظم کا ایک مصرع ہے، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا۔ تو اس ایک مصرے پر 5 جملے لکھنا ہے۔ تو پہلا جملہ ہے، آسمان پر صبح سورج طلوع ہو کر انسان کو روشنی اور حرارت پہنچاتا ہے۔ نمبر 2، رات کو حسین چاند اور بے شمار ستارے آسمان پر جگمگاتے ہیں۔ نمبر 3، زمین پر سرسبز جنگل اگائے جن میں حسین پرندے، طرح طرح کے جانور ادھر سے ادھر دوڑتے پھرتے ہیں۔ نمبر 4، ایسے پیڑ پودے پیدا کیے جن میں دلکش پھول کھلتے ہیں اور ایسے پھل لگتے ہیں جو انسان اور جانوروں کی غذا بنتے ہیں۔ نمبر 5، خدا نے پہاڑ، سمندر، ریگستان میں اور زمین کے اندر طرح طرح کی مخلوق پیدا کی اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔